Hello students, hope you all are safe, staying safe and taking care of yourselves. Okay, so here we are today going to see admission of partner, 12th commerce accounts, chapter number 3, admission of partner. Now first of all, keep this in mind, there are total 3 chapters. Okay, the chapter name will come reconstitution of partnership firm. In that first part, in chapter number 3 we have admission of partner, chapter number 4 retirement and then death. Okay, so admission, retirement and death of a partner is all are linked to each other. So in that part, first of all we are going to see admission of partner, chapter number 3, 12th BK, new syllabus. So first of all, today we are not going to start with practical sums. Today we are just going to see the introduction part. What is the concept, what is the criteria, what are the accounts to be prepared. Okay, so we are going to see that part in this video. So as you can see the textbook page, admission of partner, and this is the introduction video of admission of partner. So here you can see types of reconstitution of partnership firm. As I said earlier, there are 3 types of reconstitution of partnership firm. First we have admission of partner. In here admission of partner, as you can see, it is written when there are the new partner is admitted in the business, he brings a capital and he also shares share of goodwill. Old partners have to sacrifice the share of profit which they had earlier, they had sharing it. Okay, so the partnership agreement changes. In admission of partner, what happens in admission of partner basically is there were 2 partners. Okay, minimum partnership के लिए कितने चाहिए आपको सबको पता है, minimum 2 partners. Okay, there can be more than 2, more than 5, up till 10 or 20 as per the rules. But in this chapter or in this syllabus or in this topic we are going to study only about 2 or 3 partners. Okay, so story क्या रहेगी, there will be 2 partners basically before the admission of partner. So the 2 partners admit one more partner, so they become 3. Okay, so first they were sharing profits equally or whatever the share was, but now after the admission of third partner they have to also give the share to the third partner. So this basically we are going to study in admission of partner. Then we have retirement of partner. Okay, admission में क्या था, 2 पार्टनर होते थे, एक आता था. रिटायरमेंट में क्या होगा, 3 पार्टनर होते हैं, एक रिटायर हो जाता है, पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है. दैट विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड लास्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ सबको पता है, अगर 3 पार्टनर थे, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कौन बच जाएंगे, 2 पार्टनर बच जाएंगे, फिर वो अपना बिजनेस अलग से वापस शुरू रखेंगे, बंद करेंगे, उनकी मर्जी है. सो दिस 3 सिस्टम्स, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म: एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ओके, सो व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. सबको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला है. A person can be admitted in a new as a new partner only with the consent of all the existing partners. अगर पहले के 2 पार्टनर अगर मानते हैं या अग्री करते हैं कि yes we will be taking the third partner, then only the third partner can be admitted. न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो द कैपिटल. ओके, क्योंकि वो पार्टनरशिप में आ रहा है. ओके, उसको पार्टनरशिप में लेने के लिए हम लोग उसके पास से क्या लेंगे, एक्स्ट्रा कैपिटल एंड ऑल्सो शेयर ऑफ गुडविल. अभी गुडविल आपको सबको पता है, 11th में भी आपने देखा होगा क्या है. ठीक है, गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. सो जो 2 पार्टनर मिलकर सालों से जो फर्म को चला रहे थे, उसका गुडविल का शेयर भी न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा. ओके, सो और उसके नीचे लास्ट में दिया है नीड, कि क्यों एडमिशन ऑफ पार्टनर की नीड अराइज होती है. सो जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द बिजनेस. ओके, अगर वो 2 पार्टनर ऐसा मानते हैं कि हमारे पास कैपिटल कम है, वी नीड वन मोर पर्सन सो दैट वी हैव एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा मैन पावर, सो देन दे कैन गो फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए. ओके, नाउ जैसे मैंने पहले ही बताया 3 चैप्टर होने वाले हैं आपको इस 12th के सिलेबस में, जो पूरे 3 चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. ओके, तो उन सब के लिए आपको अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अलग अलग सिस्टम से उसको अकाउंटिंग करना पड़ता है. बट हम लोग जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको. जैसे पता है 25% सिलेबस जो कम होकर आ रहा है आपको, उसके लिए आपको पहले से ही पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका सम गारंटी आने वाला है. ओके, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको गारंटी आने वाला है. इसके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सम है वो बेसिकली आपको 100% करना पड़ेगा, बिकॉज वो कंफर्म क्वेश्चन में पूछा जाएगा. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट
जैसे कि यहाँ पे दिखाया देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, 2 पार्टनर पहले होते हैं और तीसरे को एडमिट किया जाता है। नाउ दे आर 3 पार्टनर्स। ओके, हम लोग 3 पार्टनर का अकाउंट बनाने वाले हैं। नाउ मेन थिंग इन दिस चैप्टर, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, मेन थिंग इन दिस चैप्टर और इन द कमिंग चैप्टर्स इज द रेशियो कैलकुलेशन। ओके, रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर। नाउ वो कैसे समझ में आएगा कि न्यू पार्टनर का रेशियो क्या होगा या ओल्ड पार्टनर्स का अभी रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है, साइड में आपको दिखेगा। टेक्स्ट बुक का एक पेज खोल के रखा है जिसमें न्यू रेशियो कैलकुलेशंस के बारे में बताया है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको टेक्स्ट बुक का जो पेज है उसमें दिख रही होगी, प्रॉफिट बैलेंस ऑफ वन। ओके, बैलेंस ऑफ वन का मतलब क्या होता है। बाजू में देखो, मैंने आपको एक रुपये का कॉइन बना के दिया है। मान लो, अज्यूम के 2 पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स थे, द ओल्ड पार्टनर्स, ओके, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। इक्वली का मतलब क्या, अगर वो 1 रुपया कमा रहे थे, जैसे मैंने आपको वहां पे 1 रुपये का कॉइन बताया है, वो 1 रुपया कमा रहे थे, तो दोनों आपस में कितना शेयर करते होंगे, 50 पैसे एंड 50 पैसे, आधा आधा। ओके, हाफ। ओके, तो 1 रुपये में से क्या शेयर करते थे, 50 पैसा शेयर करते थे। नाउ नया पार्टनर अगर आएगा तो उसको भी शेयर देना पड़ेगा, तो अभी उनका पहले का जो शेयर था वो कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बाजू में लिखा है, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी 1 का मतलब क्या है, पहले वो 1 रुपया कमा रहे थे, माइनस क्या करेंगे, वो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। ओके, शेयर जो हम लोग पार्टनर को, न्यू पार्टनर को देने वाले हैं, उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद न्यू रेशियो आपका बनेगा। न्यू रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, बायट करना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। अब ये ओल्ड रेशियो कहां दिया होगा, टेक्स्ट बुक में सब में दिया होगा, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू रेशियो कहां से मिलेगा, न्यू रेशियो ऑफ द कमिंग पार्टनर, रेशियो ऑफ द एडमिटिंग पार्टनर, उसका भी आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में दिया होगा कि सो एंड सो इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर, हाफ शेयर, 3/4 शेयर, वॉट एवर। ओके, तो ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया होगा। यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द न्यू रेशियोज। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ओल्ड पार्टनर्स जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1, यहाँ पे देखो ओल्ड पार्टनर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1। ओके, ओल्ड पार्टनर्स पहले 1 रुपया कमा रहे थे, माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर जो है उसको भी शेयर देना पड़ेगा। तो उसको ग्राफिकली आपको इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो आपको कैसे समझ में आएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड, 2 दोस्त पिज़्ज़ा खाने चले गए। ओके, वो पिज़्ज़ा खाने चले गए, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, पिज़्ज़ा टेबल पे आके रखा है। उतने में क्या हुआ, तीसरा दोस्त कोई आ गया अनजाने में, ठीक है, उसको बुलाया भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन तीसरा दोस्त आ गया। अभी आप गारंटी है कि आप उसको भी ऑफर करोगे कुछ ना कुछ, तो आपने क्या बोला, ले भाई 1 शेयर तू भी ले ले पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त जो आया था उसको भी एक पिज़्ज़ा का पीस आपने उसको दे दिया। तो न्यू पार्टनर, ऐसा मान लो कि वो न्यू पार्टनर है और आपने उसको पिज़्ज़ा का एक पीस दे दिया। अभी आपके पास, ठीक है, क्या बचेगा, पार्टनर को देने के बाद आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 पीस तो पार्टनर लेके गया, 1 पीस तो आपका दोस्त खा गया, ठीक है। तो आपके पास जो बचा हिस्सा है उसमें से वो 2 लोग बांट के खाने वाले हैं। ओके, सो पहले फर्स्ट पिक्चर में क्या था, पहले पूरा पिज़्ज़ा था, पूरा पिज़्ज़ा वो सिर्फ 2 लोग ही खा रहे थे, लेकिन तीसरा आदमी आने के बाद उसको भी शेयर देना पड़ा। तो उनका बैलेंस ऑफ 1, लास्ट में देख सकते हो आप, बैलेंस ऑफ 1 में आपको दिख रहा है न्यू पार्टनर का शेयर चला गया है, वो पिज़्ज़ा का पार्ट निकल गया है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से 2 फ्रेंड्स खा रहे हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशियो कैलकुलेशन की वजह करने के टाइम पे आपको ये काम आएगा कि बैलेंस ऑफ 1 में से न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद आपके पास जो बचता है उससे आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बाजू में टेक्स्ट बुक का पेज का कॉपी दिया है, उसमें रेशियो कैलकुलेशंस दिया है। हम लोग उसके अंदर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सम्स जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट। नाउ फॉर्मेट, अभी इसका फॉर्मेट कैसा होने वाला है, इस चैप्टर का फॉर्मेट कैसा होने वाला है, कौन से अकाउंट्स बनाने वाले हैं, तो वो आपके सामने अभी पेज खोल के रखा है। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबसे पहला जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ऊपर, उसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको आपको नीचे दिया है, देखो मेन अकाउंट्स टू प्रिपेयर, नीचे लिखा है फर्स्ट अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको दूसरा नाम है उसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड एंड फाइनल बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओके, ये न्यू फर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में हो सकता है आपको पुराना बैलेंस शीट दिया जाए,
पुराने डिटेल्स दिया जाए, उसके ऊपर से आपको न्यू बैलेंस शीट बनाना है। बिकॉज पुरानी बैलेंस शीट में तो कितने पार्टनर्स थे? 2। अभी न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद आपके पार्टनर्स कितने बन जाएंगे? 3। सो बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। ओके, सो एवरीथिंग विल चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, कैपिटल चेंज, ओके, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर द एडमिशन। ओके, सो बेसिकली जो पहला अकाउंट दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन नाम से आपको पता चलता होगा, रिवैल्यूएशन यानी पूरा बिजनेस को हम लोग रिवैल्यू कर रहे हैं। ओके, पहले 2 पार्टनर थे, अभी तीसरा पार्टनर आने के बाद पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। सो सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यू करना पड़ेगा, और उसका जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, उसको हम लोग इसमें डालते जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी, मैंने 2 साइन रखा है ऊपर आपके, एकदम बेसिकली समझने के लिए, इजीली आपको समझ में आए इसके लिए मैंने 2 साइन रखा है। आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक माइनस का साइन है, ठीक है, और एक प्लस का साइन है। तो ये कहने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसके लिए आपको डेबिट साइड जो है उसके ऊपर मैंने माइनस का साइन रखा है, क्रेडिट साइड के ऊपर जो है मैंने प्लस का साइन रखा है। इससे क्या पता चलता है कि डेबिट साइड आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जो भी माइनस होगा, जो भी लॉस होगा, वो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। और जो भी फायदा है या प्रॉफिट है वो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? प्लस में, यानी क्रेडिट साइड। ओके, जैसे आपको वहां पे फॉर्मेट में दिखता है, पर्टिकुलर्स में देखो, 2 एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, ओके, 2 लायबिलिटी इंक्रीज इन वैल्यू। तो जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी था, उसकी वैल्यू कम हो गई रिवैल्यूएशन में, तो कम जो डिफरेंस होगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड। और अगर बढ़ गया, अप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन का अपोजिट क्या होता है? अप्रिसिएशन। तो अगर एसेट्स की वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इसके लिए फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई हैव पुट दैट साइन माइनस एंड प्लस। ओके, डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट साइड प्लस। सिमिलरली आप नीचे देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी मैंने साइन रखा है डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट साइड प्लस। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा हमेशा 99% 3 कॉलम का ही आएगा। एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो जाए, 99.99% आपको 3 पार्टनर का ही आने वाला है। ठीक है, 2 पार्टनर होंगे, तीसरा एडमिट हुआ, 3 पार्टनर थे, एक चला गया, 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो सभी किस्सों में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। अभी इसका फंडा क्या है? डेबिट साइड जो भी पार्टनर्स को नुकसान होगा या पार्टनर्स की जेब से अगर कुछ जाता है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। और पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ आता है या पार्टनर्स को फायदा होता है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और अगर आप बराबर से देखो तो ये दोनों अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोथ आर लेजर अकाउंट्स। ओके, लेजर अकाउंट्स का आपको पता है, लेजर अकाउंट्स में एक साइड नुकसान वाली होती है, एक साइड फायदे वाली होती है, डेबिट क्रेडिट जो भी होगा वो। तो ये दोनों लेजर अकाउंट है। और तीसरा अकाउंट जो यहाँ पे दिया नहीं है, बट तीसरा अकाउंट हम लोग क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट। वो तो आपको सबको पता है, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें एंट्री कैसे होती है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी ये तो स्पेसिमेन हो गया कि कैसा दिखता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है। लेकिन नॉर्मल सम करने के बाद, ठीक है, हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब ये सारे अकाउंट्स कैसे दिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर देख सकते हो आप, जो भी टेक्स्ट बुक में होगा, क्वेश्चन होगा, वो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला अकाउंट हम लोग क्या बनाने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड, एज यू कैन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट यू कैन सी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, उसको हम लोग ने नीचे लिखा है वहाँ, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ आफ्टर एडमिशन। तो ये 3 अकाउंट बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाएगा, करंट अकाउंट पूछा जाएगा, कभी कभी गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कभी कभी कैश अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर सब में आएगा वो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको वो सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। एंड मेन थिंग, एडमिशन के सम में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे आपको क्वेश्चन के साथ, ये लेजर्स के साथ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना है कि क्या पूछा है, लेजर अकाउंट्स पूछा है या जर्नल एंट्री पूछा है, उसके हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिप्स है, सम टिप्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर के लिए सम टिप्स है, वो टिप्स को आप ध्यान में रखो, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट अस सी व्हाट आर द टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द फुल क्वेश्चन completely and understand what is asked to prepare.
दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। ओके, क्वेश्चन के नीचे या ऊपर पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, डायरेक्ट चालू मत हो जाओ लेजर बना के लाइन ड्रॉ करके। लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते पहले ही लाइन ड्रॉ करके रेडी रहते हैं, ठीक है, ऐसा मत करो। पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो, उसको समझो। क्या क्वेश्चन में ये पूछा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछा है। ओके, वहां पे लिखा है सेकंड लाइन में देखो, इफ द क्वेश्चन सेज पास जर्नल एंट्रीज देन मैक्सिमम वेटेज ऑफ मार्क्स विल बी गिवन टू जर्नल एंट्रीज ओनली एंड प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स जर्नल, ठीक है, विल बी अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। ओके, तो जर्नल एंट्री के ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर ये सम 10 मार्क का आता है तो 7 to 8 मार्क्स आपको जर्नल एंट्री का मिलेगा और 2 to 3 मार्क्स आपको वर्किंग नोट में जो आप लेजर्स बनाओगे, अकाउंट्स बनाओगे, उसके मिलेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। सो आपको सबसे पहले अपने माइंड क्लियर रखना है, ठीक है, अपनी फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आगे करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग पूरा क्वेश्चन करके आते, बाद में घर पे आके पता चलता है इसमें तो जर्नल एंट्री पूछा था और मैं तो करके आया लेजर अकाउंट्स। ओके, वैसा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपरली। सेकंड, इफ प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इज गिवन, अगर नीचे लिखा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो आपको जर्नल एंट्रीज नहीं करना है। तो आपको नॉर्मल जो हम लोग ने पीछे स्पेसिमेन देखा पीछे के पेज पे, वो आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तब आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो। थर्ड, प्रिपेयर वर्किंग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 12th के सारे टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ ये टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम सारे टॉपिक्स में वर्किंग नोट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर ऑफ योर academic year. So working notes is very important. We should show all important calculations like ratios, goodwill, profit and loss share, etc. in the working note. वर्किंग नोट आपको कभी कभी उसके मार्क्स मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, बट वर्किंग नोट देने के साथ आपका जो आंसर का वेटेज है वो बढ़ जाता है और पेपर चेकर को भी लगता है कि यस ही हैज डन दिस कैलकुलेशंस ऑन हिज ओन, ही इज नॉट कॉपीड फ्रॉम समवेयर। ओके, सो वर्किंग नोट का वो एक फायदा होता है। फोर्थ, फर्स्ट क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? सीरियली जो पहला अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका जो भी बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होगा वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? नीचे वाले अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर देन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद तीनों पार्टनर का हम लोग को क्या मिलेगा? न्यू कैपिटल, और ये न्यू कैपिटल तीनों पार्टनर का कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा और लास्ट में बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो ये दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे चल के हम लोग सम्स करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बट बेसिकली जो भी ये वीडियो में मैंने बोला है, जो भी आपको यहाँ पे वर्कशीट्स दिया है, वो प्लीज़ आप उसको समझ लीजिए कि आपको करना क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट को समझिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया आपको एग्जाम में आने ही वाला है, क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले एक फॉर्मेट देखा था अकाउंट्स का, ठीक है, कि जो पुराना पैटर्न था जो आपको मार्च या अप्रैल या मई में मिला होगा उसको मत देखिए, जो अभी लेटेस्ट मैंने आपको दिया होगा वो देखिए। ये एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है, एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट सेइंग कि यही पेपर पैटर्न आएगा, ओके, बट इट इज एक्सपेक्टेड, 99% ऐसा ही रहने वाला है। ओके, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या नया है देखिए, ऊपर लिखा है मैंने एक्सपेक्टेड, 2 स्टार मार के रखा है, एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट कंफर्म्ड। ओके, इट इज नॉट कंफर्म्ड, वापस बोलता हूँ। तो ये 80 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर आपको आता है तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसको आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन 27 जुलाई को दिया था, 25% रिड्यूस सिलेबस में बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसा होने वाला है। ओके, आगे क्या होगा वो आगे की बात है, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, दिसंबर तक स्कूल कॉलेजेस चालू नहीं होते, तब की बात अलग है। बट अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और सब में आपको चॉइस आने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर, मैंने पहले ही बताया कंफर्म क्वेश्चन है, आने ही वाला है, और उसके नीचे और उसको हाईलाइट किया, ग्रीन कलर दिया है, देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो ऑप्शन में आएगा। ठीक है, उसको आपको कॉलेज वाले सिखाएंगे भी नहीं, वो ऑप्शन में आएगा, आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो भी ग्रीन पार्ट में दिया है, जो भी ग्रीन पार्ट में आपको दिख रहा है, जो भी ग्रीन पार्ट में यहाँ पे लिखा है, जैसे कि रिटायरमेंट है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है,
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस जो भी ग्रीन पोर्शन में आपको दिया है वो आपको कॉलेज में कोई सिखाने वाला नहीं है, दिस आर ऑल सेल्फ स्टडी टॉपिक्स, और आप इसको ओमिट कर सकते हो। तो आपको पता है मुझे कंफर्म क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट्स, डेथ ऑफ पार्टनर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ग्रीन वाले नहीं करने हैं, ग्रीन वाले करके रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में कंपनी ऑफ अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये टॉपिक से अच्छा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट की जगह पे डेथ ऑफ पार्टनर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट जो आपको टॉपिक इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी किसी को डिसोल्यूशन अच्छा नहीं लगेगा, किसी किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी लगेगा, तो आपके ऊपर है वो, ठीक है, आप कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। क्लासेस वगैरह में तो हम लोग सारे टॉपिक्स कराएंगे, बट मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में ये ग्रीन वाले टॉपिक्स आपको नहीं सिखाए जाएंगे। अभी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाजू में लिखा है मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आने ही वाला है, आपको पता है, तो प्लीज कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, उसमें भी 4-5 टाइप, 6-7 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसमें से आपको 4 लिखना है, 5-5 मार्क्स के चॉइस रहेगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न एंड इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का आपको सम पता है, वो 10 से 12 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, 10 मार्क का भी हो सकता है, 12 मार्क का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क का भी हो सकता है, 10 मार्क का भी हो सकता है, इसके लिए मैंने वहाँ पे और लिखा है। तो दिस इज नॉट कंफर्म पेपर पैटर्न, बट 99%, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। पहले के आपको जो शीट आया था 25% रिड्यूस सिलेबस, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में कुछ बताया नहीं था, बट अभी थोड़ी थिंग्स क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आने वाला है। अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, वो भी शॉर्ट टॉपिक आने वाला है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो भी शॉर्ट टॉपिक आने वाला है, 10 या 12 मार्क्स का, तो उसका भी प्रिपरेशन आप चालू रखिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियोस विल प्रैक्टिकली स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।